Poisson distribution. It was discovered by French mathematician. फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्हीं का नाम दिया है इसको, सिमेन पॉइसन नाम था उनका. एंड इट वाज इन 1837. बहुत बार इस पे एमसीक्यू पूछा गया है. तो सिमेन पॉइसन उनका नाम था, इसलिए उस डिस्ट्रीब्यूशन को भी पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन बोला गया है. It is definitely a discrete probability distribution. It is a discrete probability distribution. जैसे हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीखा था theoretical distribution में कि discrete में दो है, एक binomial था, दूसरा Poisson है. It is an extension of binomial distribution. या फिर उसको बाइनोमियल का लिमिटिंग फॉर्म भी बोला जाता है. It is also called as limiting form of binomial. In which n, the number of trials, are countably infinite. Or I can say they tend towards infinity. Very large, n becomes very large. P, the probability of success of every event is very, very small. N tend towards infinity, but P is very small. And as a result, NP tends to be constant. NP constant होने लगता है या एक फाइनाइट क्वांटिटी होने लगता है. और वो बहुत बड़ा हो ये भी कोई जरूरी नहीं है, वो भी काफी छोटा हो सकता है. It tends to be constant or it tends to be a finite quantity that is constant. Which is not large. It can be very small. So this NP, which was mean of binomial. If I say that it is M, then M tends towards constant. Constant throughout the trial or throughout the distribution. And at this point, mean becomes equal to variance in binomial. तो binomial से Poisson में conversion ही कब होता है? Binomial में mean is greater than variance. लेकिन जब आपका number of trials बढ़ता चला जाता है और उस कंपेरेबली आपका जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो काफी कम होता है और m कांस्टेंट की तरफ चला जाता है, तो ऐसे कंडीशन में एक मोमेंट पे मीन बिकम्स इक्वल टू वेरिएंस. दैट इज मीन इज m is equals to mean is equals to variance of binomial. M becomes equal to mean equal to variance of Poisson. इस लेवल पे ये बाइनोमियल से Poisson में कन्वर्ट हो जाता है. तो बाइनोमियल में जब मीन वेरिएंस से इक्वल हो जाता है तो इट सीजेस टू बी बाइनोमियल
and it is called as a new distribution, that is Poisson distribution. Poisson is definitely a discrete probability distribution. It is also called as uniparametric. M is the only parameter of Poisson, and thus Poisson is called as uniparametric, क्योंकि उसको एक ही पैरामीटर होता है Poisson को. Now, Poisson function is given as, so probability function under Poisson distribution is given as e raised to minus m, m raised to x upon x factorial. ये e raised to minus m की वैल्यू बहुत बार वो लोग आपको दे देते हैं, अगर नहीं दी होगी तो वो हम लोगों को निकालनी पड़ेगी. तो वो मैं बता दूंगी आपको. जनरली तो वो लोग दे देते हैं e इज एन एक्सपोनेंट और उसकी वैल्यू है 2.71828, which can also be taken as 2 point, हम लोग अगर इसको राउंड अप करें तो 7183, इस तरह से हम लोग उसको ले सकते हैं. फाइन. तो e raised to minus m की वैल्यू निकालने के लिए बहुत काम में आएगा. And this is the Poisson distribution when x, that is number of success, are 0 or 1 or 2 or 3 and so on. क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग उसको डिफाइन कर पाए, इसलिए तो उनको हम लोगों ने बहुत ज्यादा या काउंटेबली इनफाइनाइट बोला है. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग लिख लेंगे. फर्स्ट इज mean is equals to NP, and which is denoted by M. Second property is variance is equals to NP is equals to M. Standard deviation is under root NP or M. Under root M. आता याची गरज तर नाहीये, पण तरी पण पुढे त्यांनी इकडे दिलंय तर मी पण तुम्हाला देते, पण हे काय फारसं विचारलं जात नाही. मोमेंट ऑफ स्क्यूनेस or measure of skewness is given as 1 upon under root M. ये ज्यादा पूछा नहीं गया है कभी भी. Just for information, I am giving you this. This is skewness. It is also equal to kurtosis. I am very sure that you people don't know what is skewness and kurtosis. Skewness is, it measures the tiltedness of the data. मतलब अगर डेटा का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा शुरुआत में है या बहुत ज्यादा एंड में है तो उस पे डिपेंड, तो उसको स्क्यूनेस कहा जाता है. तो बहुत ज्यादा वैल्यू शुरुआत में आती है या बहुत बड़ी बड़ी प्रोबेबिलिटी आती है शुरुआत के केसेस में और एंड में बहुत कम कम प्रोबेबिलिटी आती है, तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है. या फिर अगर उल्टा हुआ कि बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रोबेबिलिटीज जो है वो एंड में आती है और शुरुआत में बहुत कम प्रोबेबिलिटी आती है, तो उसको स्क्यूनेस बोलते हैं. कर्टोसिस इज
इफ यू ड्रॉ द ग्राफ, तो अगर आपका ग्राफ ऐसा हो सिंपल, बहुत ज्यादा ये डिस्टेंस जो है ये बहुत ज्यादा ना हो एक्स एक्सिस से, तो वो फिर मीडियम कर्टोसिस हो जाता है। अगर वो बहुत ज्यादा हो तो यहाँ पे कर्टोसिस बहुत बड़ा है, इसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं, इसको प्लैटिकर्टिक बोलते हैं। एक्चुअली दिस इज नॉर्मल कर्टोसिस, दिस इज नॉट इवन कर्टोसिस, दिस इज नॉर्मल। प्लैटिकर्टिक इस तरह से होता है, जब आप कर्व निकालो और ये जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से, तो अगर जब ये डिस्टेंस बहुत कम होता है तो उसको प्लैटिकर्टिक बोलते हैं, जब ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है तो इसको लेप्टोकर्टिक बोलते हैं। और ये तो नॉर्मल कर्टोसिस यहाँ पे 0 होता है, ये डिस्टेंस जब यूनिफॉर्म है तो ये ज्यादा तो है नहीं हम लोगों को, हमारे बुक में बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मैंने लिख के दिया है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। क्वेश्चंस कंपेरेबली बहुत इजी है बाइनोमियल से फॉर कैलकुलेशन, क्योंकि पहली बात तो ये बस एक यूनिपैरामीटर है, एक ही पैरामीटर होता है m, इसका मोड भी है वो m पे डिपेंड करता है। मोड ऑफ क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ m। अगर m इंटीजर है तो आपके पास दो मोड्स है, if m is integer then there are two modes, one is m and other is m minus 1। तो अगर m इंटीजर है तो आपके पास दो मोड्स है, m है और m माइनस 1 है। तो अगर m की वैल्यू 2 आई तो आपके पास दो मोड्स है, 2 और 1। लेकिन अगर m फ्रैक्शन है, if m is fraction then mode is the largest integral value। एकदम सिंपल है कि अगर m की वैल्यू आपकी if m is equals to say suppose 4, तो आपके पास दो मोड होंगे, 4 होगा दूसरा होगा 3। लेकिन अगर m की वैल्यू होगी 4.3 तो आपके पास एक ही मोड होगा, दैट विल बी 4, द हाईएस्ट इंटीग्रल वैल्यू। So these are all the required properties of Poisson. These properties are really important for us. इस पे बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।